also now BJP's Nalin Kohli is joining me on the phone line right now. Nalin, how does one look at it? Because Aam Aadmi Party will again say, well, this is the health issue. If someone inside the prison perhaps likely knows a medical treatment like that can come in. But the BJP has brought in that this is an accused of child rape. If this is true, it is extremely worrisome. It is something to be fearful about. It raises some very serious legal issues. If a convict is being, and that too of a heinous crime like rape of a minor, which means POCSO, is being asked to provide certain benefits or services to a minister, then the question that begs an answer is, what have they promised him in return? What benefits they want to give this man? What are they promising him? Parole? Are they promising him certain benefits or privileges within the jail, beyond the jail manual? These are very, very serious questions. And how can the Aam Aadmi Party wash its hands away from it? What is it that Mr. Satyendra Jain hides or knows that is so terrifying for Mr. Kejriwal and his team? Mr. Kejriwal is the one who famously stood on rooftops and screamed out his lungs, saying that you bring me videos, I will take action. We will not spare anybody. Is this sparing people? Here is a minister who is accused of laundering money. That minister is in jail. Another convict is giving him massages. Mr. Kejriwal goes out of his way to give a certificate and say this is a physiotherapy session. So convicts are physiotherapists. Is this not a slap on the face of physiotherapy? But Nalin, Aam Aadmi Party can always say that we are outside, we have nothing to do with it, ask and question then why the did you Tihar defend it security without knowing it? officials. Why did you defend it without knowing it? That means, does Mr. Kejriwal speak without knowing? Someone who's taken the oath of the Constitution is someone who's going to just blabber away without even getting his facts clear? These are serious questions. What was the India Against Corruption movement? Anna Hazare is my guru. Everything that Mr. Kejriwal has said in his life, he has done the polar opposite. Is this not another case of such a thinking? Are you saying this could become a blot on the whole identity that the Aam Aadmi Party has? Well, certainly, the Aam Aadmi Party has much to answer, whether it's on the liquor scam, whether it is on Mr. Satyendra Jain, whether it's the kind of politics that they practice of calling the Prime Minister niche in Gujarat. These are serious issues. Nalin Kohli, thank you so much for joining us. Nalin Kohli from the BJP. So it's not just the BJP, even Congress is stepping up. And Alka Lamba is joining me, prominent Neta from Delhi politics. Alka, what you saw on your screen, अब बीजेपी का कहना है कि ये तो रेप अक्यूज है. ये तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स की आप मानेंगे गलती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये आम आदमी पार्टी के डोर पे सीधा आता है? देखिए, शर्मनाक सीसीटीवी फुटेज दोबारा हम देख रहे हैं. एक बच्चियों के बलात्कारी से पोक्सो में वो जो रिंकू नाम का अपराधी है जेल में बंद है, उससे आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहे हैं. कल से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी बचाव में उतरे हुए थे और हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी गंभीर रूप से बीमार हैं और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे रहा है. आज पता लगता है कि एक बलात्कारी से मसाज ली जा रही थी. मैं अब आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायकों से उम्मीद करती हूँ तुरंत सामने आए और अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाएं कि 1 मिनट का भी समय जो है वो गवाए बिना सत्येंद्र जैन को हटाएं. मनीष सिसोदिया का ये बयान जो उसने दिया, उन्होंने उसके पीछे क्या आधार था उनको भी पता लग गया. माफी मांगे, गुमराह नहीं करें दिल्ली को. तिहाड़ जेल पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हो चुका है. वहां पर जो है सिद्धू मूसेवाला के जो है पूरा मर्डर प्लान हो जाता है, इनको पता नहीं चलता. वहां एक बलात्कारी से एक जेल के अंदर जिस तरह का हो रहा है, मसाज हो रही है जिस तरह का, तो मुझे लगता है कि तिहाड़ जेल पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंदर कंप्रोमाइज्ड हो चुका है. वहां अपराधियों को संरक्षण पूरी तरह मिल रहा है और उनका बचाव पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल खुद करते हुए दिख रहे हैं, जो अपने आप में एक बेहद चिंता का विषय है. आप क्या चाहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? अभी क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? अभी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने रिएक्ट नहीं किया है. ऑलरेडी एक एमएलए का थ्रैशिंग वीडियो आ जाता है, फिर ये वीडियो आता है, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो एक के बाद एम्बैरेसमेंट हो रहा है. वो कह रहे हैं ये सब पॉलिटिकल टारगेटिंग है उनके खिलाफ, ये कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ, क्योंकि वो गुजरात और दिल्ली के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं. देखिए, राजनीति बदलने आए थे. आप गुजरात लड़े, आप हिमाचल, आप देश लड़िए, ठीक है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसकी सच्चाई से आप इनकार कर कैसे सकते हैं? पहली तस्वीरों में
आप कह रहे हैं मसाज ही नहीं हो रही, फिर मसाज हो रही है तो वो डॉक्टर कर रहा है। अब पता लगता है वो तो एक जेल में बंद कैदी जो है वो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, वो कर रहा है। अब आप इस पे कहेंगे गुजरात चुनाव आ रहा है। सच्चाई तस्वीरों में आंखों से दिख रही है, आप इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? दुख होता है कि राजनीति बदलने वाले आज इस स्तर पर बदलकर निचले स्तर की राजनीति पर आ गए हैं। मैं बिल्कुल बयान की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। 8 महिला विधायकों से, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से मैं उम्मीद करती हूँ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे वो जवाब दें कि बच्चियों के बलात्कारियों से दिल्ली का मंत्री 3 महीने से मसाज ले रहे हैं, सुख सुविधाएं ले रहे हैं। अगर बीमार है तो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली सरकार का है, तिहाड़ के बिल्कुल सामने बनाया गया, इसीलिए कि किसी कैदी को कभी भी कुछ स्वास्थ्य की जरूरत हो, लाभ की, तो वहाँ जाए। तो लाइए ना उनको वहाँ सत्येंद्र जैन जी अलका, को। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी भी रही हैं कुछ वक्त के लिए, तो जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं, ये तो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन भी हो जाता है। आप भी इन नेताओं को जानती हैं, आप क्या सोचती हैं अभी आम आदमी पार्टी में किस तरह का माहौल होगा? जी बिल्कुल, माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। महिलाओं की कोई इज्जत है ही नहीं इस पार्टी में, इसलिए मैं नहीं, अनेकों ने छोड़ा। 8 महिला विधायकों ने, वंदना सिंह 3 बार की विधायक है, राखी बिलान 3 बार की विधायक है। आपने कभी इनको देखा, कभी सुना इनको? सिर्फ 2 चेहरों को रटा लिखा पढ़ा कर भेज दिया जाता है, या तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाते हो अध्यक्ष, लेकिन रटे रटाई चीजों को वो बोलती है जिसकी सच्चाई उन्हें खुद भी नहीं पता होती है, कंप्रोमाइज हो चुकी है। बाकियों की आवाज कभी आपने देखी हो, चेहरे देखे हो, आपने सुना हो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? दबा दिया Alka गया Lamba, है। thank you very much. Yes, for speaking to India today. I get your points. Alka Lamba targeting the Aam Aadmi Party right now.